Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. Chapter number 7, correlation is under discussion. Today, lecture number 10, the topic is the linear correlation coefficient is the geometric mean of two regression coefficient, which is the formula 8. तो students आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें. So let's start the topic. The correlation coefficient is the geometric mean of two regression coefficients. In the contents of this lectures, there are the 2 points which will be under discussed. First one is the linear correlation coefficient is the geometric mean of two regression coefficient. In this point, students, I will discuss the formula number 8. In the second point, I will discuss the exercise question 7.7 and calculate the value of R using formula 8. Now students, I am going to explain the first point, that is the linear correlation coefficient is the geometric mean of two regression coefficient, that is the formula 8. The correlation coefficient formula 8 in terms of the regression coefficient is as the correlation coefficient Rxy is the geometric mean of two regression coefficients b y on x and b x on y of the regression lines y on x and x on y respectively. टू regression lines students इसको हम लोग चैप्टर 7-6 में डिस्कस कर चुके हैं. y equals to a plus bx that is the line of regression y on x और इसका regression coefficient जो है वो हमारे को यूज किया है हमने y on x और regression line x on y that is the x equal to c plus dy जिसको हम लोगों ने डिनोट किया था bx on y से. दोनों regression coefficients का यूज करेंगे geometric mean which is the value of r और आपके पास यहाँ पे both of the regression coefficients are positive so you can take the value of r is also पॉजिटिव. तो आपने r की वैल्यू को पॉजिटिव लेना है अगर आपके पास दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज जो है पॉजिटिव होंगी, विच इज द फार्मूला 8. और अगर आपके पास दोनों वैल्यूज जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की नेगेटिव होंगी माइनस बी वाई ऑन एक्स एंड bx on y is also negative, then you can take the value of r is also negative. तो ये आपके पास फॉर्मूला 8 की दो जो है सिचुएशंस हैं जिसमें आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की दोनों वैल्यूज को या तो पॉजिटिव होगी आपके पास तो आपके पास r की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी और अगर दोनों वैल्यूज जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की नेगेटिव होंगी तो यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ r इज नेगेटिव एंड इट इज नॉट पॉसिबल दैट द वन ऑफ द regression value of the regression coefficient is positive and other is the negative. तो इस सिचुएशन में आपके पास वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आर एक्स वाई का that is the geometric mean of two regression coefficients. If the both the regression coefficients are positive, you can take the value of r positive, and both the regression coefficients are negative, so you can take the value of r is negative. तो हम लोग जो है वो यूज करेंगे फॉर्मूला 8 को जिसमें हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे अपनी r की वैल्यू को. Now students, I am going to discuss the exercise question 7.7 और हम कैलकुलेट करेंगे इसमें वैल्यू ऑफ r को using two regression coefficients, that is the formula 8. In the statement of exercise question 7.7, calculate the correlation coefficient for the following data using regression coefficients. और आपके पास x और y की information given है. There are the 10 number of observations of x and y values. Here we use the following formula 8 for the linear correlation coefficients. R is the geometric mean of two regression coefficients rxy with positive square root के साथ by on x into bx on y. That is the formula 8. और if rxy equal to the negative square root के साथ by on x and bx on y both are the regression coefficients using as negative, which is the formula 8. इसको हम यूज करेंगे अगर हमारे पास दोनों regression coefficients की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव जनरेट होती हैं तो हम लोग जो है वो आपके पास इसकी फर्स्ट सिचुएशन को कंसीडर करेंगे r की, और अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज जो है वो नेगेटिव जनरेट होती हैं ऑफ एक्स वाई डेटा की तो हम लोग यूज करेंगे इसकी सेकंड सिचुएशन ऑफ r x y correlation coefficient को. First of all, students, I will prepare some columns of the x, y values according to the formula. First, we write the x values and y values in columns and calculate the summation x and summation y. Summation x equal to 75, x values का sum summation x equal to 75 है, and sum of the y values is 170. और then फिर हम लोग prepare करेंगे product of the x y values. x y values की product के लिए students आप लोग जो है वो each value of x and y को product लेंगे और इसको write करेंगे x y column के अंदर 3 multiplied by 25. Answer is 75. 4 multiplied by 24. Answer is 96. इसको राइट करेंगे एक्स वाई वैल्यूज में 5 मल्टीप्लाई बाय 20. आंसर इज 100. देन वन बाय वन आपने ईच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट यूज करना है, उसको राइट करना है एक्स वाई कॉलम के अंदर. तो 120, देन फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 119, 133, 8 मल्टीप्लाई बाय 17, 136, 144, 130, 110 एंड 72. और देन फिर आपके पास समीशन x जो है वो उसका सम
1116 यानी 1116। देन स्टूडेंट्स प्रिपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर का कॉलम, और एक्स स्क्वायर के कॉलम के लिए ईच वैल्यू ऑफ एक्स को आपने जो है वो इसका स्क्वायर यूज करना है और उसको राइट करना है। एक्स स्क्वायर के कॉलम के अंदर तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर 9। देन फिर आपके पास नेक्स्ट वैल्यू जो है स्टूडेंट्स 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर इज 16, इसको राइट कर लेंगे 16। और देन फिर ईच वैल्यू ऑफ एक्स को वन बाय वन आपने इसको स्क्वायर करना है, उसको राइट करते जाना है। एक्स स्क्वायर के कॉलम के अंदर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 एंड 12 का स्क्वायर 144। देन स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे समीशन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 645। देन इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर में ईच वैल्यू ऑफ वाई को स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट करना है वाई का स्क्वायर, और देन इसको राइट करेंगे वाई स्क्वायर के कॉलम में। फर्स्ट वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स 25 है, 25 का स्क्वायर इज 625, इसको राइट करेंगे वाई स्क्वायर के कॉलम में 625। 24 का स्क्वायर जो है वो आपके पास यहाँ पे 576 है, 20 का स्क्वायर 400, देन 20 का स्क्वायर अगेन 400 राइट करेंगे, 19 का स्क्वायर 361, 17 का स्क्वायर 289, 16 का स्क्वायर 256, 13 का स्क्वायर 169 एंड 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36। और देन फिर आपने कैलकुलेट करना है समीशन वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर के कॉलम को सम करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, तो इसका सम जो है वो 3212। तो स्टूडेंट्स आपने अपने जो रिक्वायर्ड सम्स हैं उनको कैलकुलेट कर लिया है फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आर using the formula 8 summation xy equal to 1116, summation x square 645 and summation y square 3212. Now students, I will have to calculate the both value of the regression coefficients by on x and bx on y for the formula 8 to calculate the value of r. रेग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला 4 को यूज करूंगा बी वाई ऑन एक्स इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर विच इज द फॉर्मूला 4। और राइट साइड पे स्टूडेंट्स मैंने अगेन इनके सम्स को राइट कर दिया है और इनको यूज करेंगे अपने फॉर्मूला 4 में और कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को। तो आपने यूज करना है यहाँ पे आपके पास एन की वैल्यू जो है वो 10 है, समीशन एक्स वाई जो है वो आपके पास 1116, इसको पुट कर दे, समीशन एक्स जो है वो आपके पास 75 और समीशन वाई की वैल्यू 170 है, इसको यूज करेंगे। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आपने समीशन एक्स स्क्वायर 645 और समीशन एक्स की वैल्यू 75 यूज करनी है उसका स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स आपने यूजिंग कैलकुलेटर अपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों टर्म्स को जो है वो उसको फाइंड करना है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1590 को आप डिवाइड कर देंगे 825 पे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -1.93। ये आपके पास फर्स्ट रेग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू है। और सेकंड रेग्रेशन कोफिशिएंट्स का फॉर्मूला जो है वो हम लोग 4 ही यूज करेंगे बी वाई ऑन एक्स के लिए, which is also denoted by dn summation xy minus summation x into summation y। न्यूमरेटर की टर्म जो है वो सेम है बी वाई ऑन एक्स की तरह, और इसमें हमारे पास बी एक्स ऑन वाई है, तो उसका आपके पास डिनोमिनेटर में y की टर्म्स यूज होंगी एन समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर विच इज आल्सो द फॉर्मूला 4 बाय फॉर द रेग्रेशन लाइन x ऑन y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम लोग जो है वो अपने सम्स को यूज करेंगे। राइट साइड पे अगेन जो है वो आपके पास सम्स जो है वो प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग यूज कर लेते हैं n इक्वल टू 10 और आपके पास समीशन एक्स वाई जो है वो 1116 पुट हो जाएगा, समीशन x 75 एंड समीशन y इक्वल टू 170 और डिनोमिनेटर में y के टर्म्स हैं, तो n आपके पास 10 और समीशन y स्क्वायर की वैल्यू जो है 3212 और समीशन y का स्क्वायर लेंगे यूज करेंगे 170 का स्क्वायर, और मिडल में आपके पास जो है वो माइनस साइन यूज हो गया फॉर्मूले का। उसके बाद आपने इसको यूजिंग कैलकुलेटर जो है वो सॉल्व करना है और फाइनल आंसर जो है वो आपके पास पी वाई ऑन एक्स का -0.494 है। तो आपके पास दोनों रेग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव जनरेट हुई हैं, और इसमें हम लोग जो है इसको यूज करेंगे अपने फॉर्मूला 8 में और कैलकुलेट करेंगे r की वैल्यू को। Now I will use the correlation coefficient formula 8 in terms of the regression coefficients. Formula is as R is the geometric mean of two regression coefficients Rxy equal to square root of Py on x into Px on y. That is the formula 8. In this question, students, both the regression coefficient have the negative values, और आपके पास right side पे मैंने इसको write कर दिया negative values को Py on x equal to -1.93, इसको कैलकुलेट किया हमने, और Px on y is the -0.494। तो फॉर्मूला में यूज करेंगे दोनों नेगेटिव वैल्यूज को ऑफ फ्रैक्शन कोफिशिएंट्स की, तो आपने स्टूडेंट्स पुट कर देनी है
अपनी फॉर्मूला 8 में बी वाई ऑन एक्स की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे -1.93 और बी एक्स ऑन वाई की जगह पे पुट करेंगे हम लोग 0.494 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास साइंस जो है वो अगेन मल्टीप्लाई हो जाएंगे और स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे। तो आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ द 0.953 है और माइनस साइन हम लोग खुद से यूज़ करेंगे क्योंकि बोथ द वैल्यूज ऑफ द regression coefficients are negative, so we take the value of the r is as negative, तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ r। तो आपके पास फाइनल आंसर स्टूडेंट्स r का नेगेटिव 0.97 होगा विच इज लाइज बिटवीन द -1 एंड 1। इसकी रेंज में लाई कर रहा है r की, डेट इज करेक्ट, और इसमें हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन होगी बिटवीन x एंड y। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं r की वैल्यू को यूजिंग फॉर्मूला 8 जिसमें हम लोगों ने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को पहले कैलकुलेट किया और देन फिर हम लोगों ने इसको जो है वो फॉर्मूला 8 को यूज किया, डेट इज द r is the geometric mean of two regression coefficients b y on x and b x on y. In this lecture, I discussed the properties of the correlation coefficient, which is the formula 8. R is the geometric mean of two regression coefficients b y on x and b x on y. इस फॉर्मूले को डिस्कस किया और इसमें हमने दो सिचुएशंस को डिस्कस किया और देन स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चंस के ऊपर जो है इसको अप्लाई किया और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को की वैल्यूज को मालूम किया और देन फिर हम लोगों ने फाइंड किया आर की वैल्यू को और देन यूज किया हम लोगों ने साइंस अकॉर्डिंग टू द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स वैल्यूज। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।